Class 10, today we are starting with a new chapter, study of compounds and nitric acid, the chapter. If you remember the formula of nitric acid, that is HNO3. So HNO3 we are writing nitric acid. Over here there are very few points that are coming over in this chapter. The first thing which you have to go through is with the lab methods. So if you focus on the lab method of nitric acid, then you should remember that there are salt and acid that is being used, and that salt is your I'm writing a general idea. Salt reacts with sulfuric acid. This sulfuric acid should be concentrated, then again it will give you a salt and HNO3. It's nitric acid, vapors will be obtained. So this is the lab method. Now what type of salt we can use over here? Over here the salt should be nitrate. Any nitrate you can use, but over here we are using two nitrates. Either potassium nitrate you can use, which is also known as nitrite, or you can use sodium nitrate, which we called as chili salt peter. Okay, this thing you have to remember. These are the reactants part, and any of the one you can use. Either you can use potassium nitrate or you can use sodium nitrate. And the next is the sulfuric acid. So sulfuric acid here should be in concentrated condition. ठीक है, so these are the three reactants. इन दोनों में से कोई भी एक, and this is the reactant part. Now it's the reactions goes like that. Suppose I am using potassium nitrate, KNO3 plus reacts with sulfuric acid. It should be concentrated. Temperature should be less than 200 or around 200 you can use. It gives you a salt KHSO4, which is a acidic salt, acid salt. तो ये आपको acid salt it will give you, and along with that vapors of nitric acid. ठीक है, तो ये acid salt मिलता है. ये क्या है, इसका नाम है पोटेशियम bisulfate, or you can also called as potassium hydrogen sulfate. ठीक है, पूरा एक नाम है. Suppose if you use sodium over here, so NaNO3 plus H2SO4 concentrated less than 200, NaHSO4 plus HNO3. So name will be sodium bisulfate or sodium hydrogen sulfate. You can use any, you can write any of the name of for it. So this is the chemical reaction which you should remember. तो अगर इक्वेशन पूछी जाए लैब की, तो any one you can write down. If you want to write down both, you can write down both. So this way you can go for the reaction part. So there is a diagram also. I'm showing you the diagram. Now this is the diagram, and most of the time the diagram is not asked to draw, but diagram is coming and they are asking you the labeling part. So suppose this is the diagram. This diagram you can see, this is all the apparatus are made up of glass. This you have to keep it in mind. Glass means you know that glass apparatus we are using in the labs. So all the apparatus should be for it should be made up of glass, and you can see that this particular glass apparatus is a retort. इट इज़ अ ग्लास रिटॉर्ड. ये क्या है, आपकी पूरी ग्लास रिटॉर्ड है, और आगे से आपकी एक लॉन्ग ट्यूब फॉर्म में जाती है, ऊपर से ओपन होती है, सो दैट यू कैन ऐड योर रिएक्टेंट पार्ट. नाउ यू कैन सी दैट ओवर हियर दे हैव रिटन द रिएक्टेंट पार्ट. भाई सोडियम नाइट्रेट यू आर यूजिंग, और पोटेशियम नाइट्रेट यू आर यूजिंग, दैट इज़ अ सॉलिड रिएक्टेंट पार्ट, एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड you are using, that is liquid reactant part. So it's been added. Temperature you are applying over here. Temperature should not go beyond 200 degree centigrade. और ये आपका एक रिसीवर है जिसमें जो आपके नाइट्रिक एसिड जब बनेगा तो वेपर फॉर्म में मिलेगा. ऊपर से टैप इज़ देयर, सो इट इज़ बीन कूल डाउन सो दैट दिस वेपर कन्वर्ट इटसेल्फ टू एन लिक्विड
ऑफ नाइट्रिक एसिड, सो लिक्विड फॉर्म में आपको नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा. वेस्टेड वाटर जो है यहाँ से वॉश्ड अवे हो जाएगा. सो दिस एपरेटर इज़ बीइंग सेट अप इन दिस मैनर. नाउ देर आर सर्टन प्रिकॉशंस विच यू हैव टू कीप इट इन माइंड. नाउ व्हाट आर द प्रिकॉशंस? प्रिकॉशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल द एपरेटर शुड बी मेड अप ऑफ ग्लास. मैं बार बार कह रही हूँ एपरेटर्स किससे बने होने चाहिए? ग्लास से. देन द पॉइंट इज़ दैट वाई वी आर नॉट यूजिंग अदर एपरेटर. जैसे हम लोग अपने लैब में देखा है वी आर यूजिंग कॉक्स, ना कॉर्क होती है ना कॉक, और सब टाइप प्लास्टिक्स के भी एपरेटर्स में यूज़ करते हैं. बट ओवर हियर वी आर नॉट रबर, वी आर नॉट यूजिंग ऑल दीज थिंग्स. नो रबर, नो कॉर्क, नो प्लास्टिक ओवर. वाई? बिकॉज द नाइट्रिक एसिड विच वी आर यूजिंग इट इज़ कोरोसिव इन नेचर. तो वो रिएक्शन हो जाएगी ना, वो ख़राब हो जाएगा. दैट्स वाई वी आर नॉट यूजिंग ऑल दीज थिंग्स. Are you getting my point? Next, the point is that you are using reactants. Let's focus on the reactant part. Reactant में let's focus on this their ratios. What are the ratios that you have to use? 1:1. रेशियो दोनों रिएक्टेंट्स के 1:1. अगर 1 पार्ट आप सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं तो 1 पार्ट ही आप क्या लेंगे अपना नाइट्रिक सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट you will take. Then the second point arises about the acid. Acid which you are using over here, you are using concentrated sulfuric acid. Why you are using concentrated sulfuric acid? That is also a question arises. देखा कितनी चीज़ें आई कि why you are using a glass apparatus. Then next point is that कि why, what is the ratio of the reactants. Third point आया कि you are using an acid that is concentrated sulfuric acid. Why you are using concentrated sulfuric acid? Why you are not using, देखो नाइट्रिक एसिड बना रहे हैं तो नाइट्रिक एसिड तो लेंगे नहीं. अब यहाँ पे 2 एसिड बचते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड आप यूज़ कर रहे हो और एक HCl. We'll discuss both the acids. So let's talk about first of all the concentrated sulfuric acid. So we are seeing concentrated sulfuric acid. Why we are using concentrated sulfuric acid? First of all, it is non-volatile. ठीक है, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होता है. ठीक है, ये चीज़ आप दे रहे हैं नॉन वॉलेटाइल इन नेचर. और नॉन वॉलेटाइल एसिड आप ये भी कह सकते हैं नॉन वॉलेटाइल एसिड. राइट. नेक्स्ट इज़ दैट यू आर मेकिंग ओवर हियर, जो आपने रिएक्शंस में आपने यू आर यूजिंग KNO3 और NaNO3 होता है ना. तो बेसिकली क्या है कि जो आपका ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इट्स वेरी केपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग अ वॉलेटाइल एसिड. अब देखो जो H2SO4 है ये बेसिकली इसका नेचर क्या है, ये नॉन वॉलेटाइल है. एंड द एसिड विच इज़ फॉर्मिंग नाइट्रिक एसिड इट इज़ वॉलेटाइल इन नेचर. यू आर यूजिंग वॉलेटाइल एसिड, यू कैन से नॉन वॉलेटाइल एसिड कह लें. ठीक है, ये भी नॉन वॉलेटाइल एसिड है ये. तो बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड इज़ क्वाइट केपेबल टू डिस्प्लेस दिस वॉलेटाइल नाइट्रिक एसिड फ्रॉम द सॉल्ट. जो सॉल्ट आपने लिए NaNO3 और KNO3 में से, उसमें से आप इजीली सल्फ्यूरिक एसिड से जब रिएक्शन कराते हैं तो इजीली यू कैन दिस सल्फ्यूरिक एसिड कैन डिस्प्लेसेस द नाइट्रिक एसिड फ्रॉम दीज पर्टिकुलर सॉल्ट्स. ठीक है, सो that's why we are using the sulfuric acid. First point. Then the question asked like this thing, concentrated HCl is not used. ठीक है, आप ये नहीं यूज़ कर रहे हैं. Why you are not using it? The point is that जो concentrated HCl है it's also volatile acid. So one volatile acids will not displace another volatile acid. यहाँ देखिए आप HCl लेंगे और यहाँ HNO3 लेंगे, ये भी volatile है, ये भी volatile. एक volatile दूसरे volatile को displace नहीं करता है. That's why we are not using concentrated HCl over here. Right? Ratios is clear कि what are the ratios of the reactant. molar ratio लेते हैं हम 1:1 का. तो रेशियो भी लिख लीजिए आप, मोलर रेशियोज ऑफ रिएक्टेंट्स नाउ यू नो दैट इज़ 1:1 इज बीइंग डन. नाउ यू आर क्लियर विथ इट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजिंग, ये सब रीजनिंग क्वेश्चन है. टेम्परेचर फॉर द रिएक्शन यू आर यूजिंग अ टेम्परेचर दैट इज़ इट शुड बी लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड. आपने यही रिएक्शन लिया था, आपने देखा था हम एक रिएक्शन ले रहे हैं. It's reacting with the sulfuric acid जो concentrated है. Temperature should be equal or less than 200 degree centigrade. So it's give you a acid salt. An acid is been formed. ठीक है. अब बेसिकली क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर अबव लेना है, जैसे इफ़ यू आर टेकिंग अ टेम्परेचर मोर देन 200
degree centigrade. So over here will not get an acid salt, you will get a normal salt. ठीक है, ये आपको क्या मिल रहा है, इट इज़ अ नॉर्मल सॉल्ट एंड दिस इज़ अ एसिड सॉल्ट. ठीक, बैलेंस कर लीजिए, कोई इशू नहीं है. 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगाइए. अब इन दोनों में क्या पॉइंट है, बेसिकली देखो ये तो कोई इशू नहीं है क्योंकि यही मेन प्रोडक्ट है जो बनना है. अगर आप रिएक्शन ये वाली लिख देंगे तो यू विल गेट 0 बिकॉज दिस रिएक्शन इज़ नॉट प्रैक्टिकल रिएक्शन. सही रिएक्शन नहीं होती है क्योंकि जो नॉर्मल सॉल्ट दैट इज़ बीन फॉर्म इट डैमेज द एपरेटस. सो यू आर नॉट यूजिंग हाई टेम्परेचर अबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड नॉट यूज बिकॉज फर्स्ट थिंग इज दैट इज डैमेज द ग्लास apparatus. It's again a reasoning question. Is damage the glass apparatus. Second thing is that decomposition of नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड का ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है, मतलब वो और ब्रेक होके नेसेंट ऑक्सीजन दे देती है. थर्ड इज़ दैट हार्ड रेसिडुअल क्रस्ट ऑफ. अगर आप सोडियम सल्फेट ले रहे हैं तो सोडियम सल्फेट बनेगा, और अगर आप सोडियम नाइट्रेट ले रहे हैं देन यू विल फॉर्म सोडियम सल्फेट. अगर आप पोटेशियम नाइट्रेट ले रहे हैं तो पोटेशियम सल्फेट विल बी फॉर्म्ड. ठीक है, इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो इसीलिए क्या हो जाता है, स्टिक ऑन ग्लास apparatus and cannot be removed easily. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, जो ये आपने अगर apparatus अपना, ये आपका रिटॉर्ट था. अब रिटॉर्ट में सपोज़ करो यहाँ पे आपका ये पूरा आपका समझने की बात है, आपने Na2SO4 बन गया. अब बेसिकली क्या होगा, ये सोडियम सल्फेट जो है ये पूरा एक क्रस्ट फॉर्म में या इस पर स्टिक हो जाएगा क्योंकि हीट से ये पुअर कंडक्टर. अगर आप इसको हीट भी इस पर आप करेंगे तो होता नहीं है कि कोई चीज़ अगर चिपक जाती है तो हम उसको हीट करते हैं तो वो वहाँ से निकल जाती है. लेकिन बेसिकली क्या है कि व्हेन यू आर हीटिंग इट्स बीइंग अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सो देन टू इट्स नॉट बीन रिमूविंग फ्रॉम द एपरेटर, इट स्टिक्स ऑन द एपरेटर्स. तो वहीं पे वो चिपका रहता है और आप उसको क्या कहते हैं कि आप उसको निकाल नहीं पाते और एपरेटर्स ख़राब हो जाता है, आपको तोड़ना पड़ता है. दैट्स वाई वी आर नॉट यूजिंग टेम्परेचर अबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड. तो आई थिंक इट्स द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू, व्हाट आर द थिंग्स आर देयर. ठीक है, ऑब्जर्वेशन है, कलेक्शन है और प्रिकॉशंस हैं. थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा कि हाउ इट इज़ बीइंग कलेक्टेड अप. लेट्स फोकस ऑन दैट. ना यू आर सीइंग कलेक्शन पार्ट कि ये बेसिकली रिसीवर में आप कलेक्ट करते हैं. यहाँ कोई नहीं है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट या अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट जैसी चीज़ें कुछ नहीं है. तो ईजिली क्या है, ये कलेक्टेड अप हो जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं होता है. ठीक है, जो नाइट्रिक एसिड बना है. अब एक पॉइंट आती है, कुछ 2 पॉइंट्स हैं. प्रोडक्ट आपका क्या बना है, यहाँ पे वी गेट वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, है ना, यही देखा था ना हमने. Vapors of nitric acid was formed and later on it was when it condenses it changes to then after condensation it changes to liquid nitric acid. ठीक है, ये आपका बन रहा है. अब नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास जो आ रहा है, यहाँ कुछ कंडीशंस आती हैं. प्योर नाइट्रिक एसिड, प्योर नाइट्रिक एसिड, इट्स अगेन अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. प्योर नाइट्रिक एसिड, whatever we have discussed in this video, they are very important and you can see in 10 years question paper that these questions are coming frequently, so don't ignore this chapter. Pure nitric acid is colorless, one question. ठीक है, now this particular pure nitric acid is always colorless, but what happen कि ये आप एक क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि लेटर ऑन जो नाइट्रिक एसिड आपका ऑब्टेन होता है लैब में, वो स्लाइटली येलोइश ब्राउन कलर होता है. वो तब होता है जब आप थोड़ा उसको टाइम पीरियड उसे रख देते हैं. लेकिन नॉर्मली जो नाइट्रिक एसिड होता है वो कलरलेस होता है. ठीक है, अब कलरलेस है और अभी मैंने दूसरी बात कही कि इट गिव्स यू व्हेन वी आर ऑब्टेनिंग लेटर ऑन इट चेंजेस टू येलोइश ब्राउन इन कलर. बाय दिस इज हैपनिंग कि प्योर नाइट्रिक एसिड इज़ कलरलेस बट इट्स देन टू इट इज़ स्लाइटली आफ्टर दैट इट गिव्स यू स्लाइटली yellowish
brown in color, who is changing to slightly yellowish brown in color, that is your nitric acid. Now what is happening कि बाय कलरलेस है और वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर हमें शो कर रहा है, दैट वी हैव टू फोकस. नाउ द पॉइंट अराइजेज दिस नाइट्रिक एसिड गोज़ फॉर डिकम्पोजिशन. अब ब्राउन कलर कैसे आएगा उसे देख लो, या येलोइश ब्राउन कलर कैसे आएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड. ठीक है. नाउ दिस पर्टिकुलर नाइट्रिक एसिड when it's come in contact with the air, this or even in the ordinary temperature, ये break down हो जाता है और ये हमें water देता है, NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड योर ऑक्सीजन गैस इज़ बीन ऑब्टेन. ठीक है. अब बेसिकली क्या है कि ये जो N2 गैस हो इसको बैलेंस कर लेते हैं, 4 2 4. ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है आपका, that is your it's gives you a reddish brown color. ठीक है. इसके वजह से जो नाइट्रिक एसिड है जो उसका कलर कलरलेस से इट चेंजेस टू येलोइश ब्राउन इन कलर, क्योंकि ये आ जाता है आपके उसमें नाइट्रिक एसिड में. ठीक है. तो नाइट्रिक एसिड कलर इज चेंजिंग फ्रॉम कलरलेस टू रेडिश ब्राउन इन कलर. नाउ हाउ यू कैन रिमूव दिस. अब भाई आपको तो कलरलेस नाइट्रिक एसिड मिला था आपने जब लैब में बनाया, कलरलेस HNO3, बट इट इज़ चेंजिंग टू येलोइश ब्राउन इन कलर. ठीक है. किसका हो गया ये नाइट्रिक एसिड का. भाई उसने रिएक्शन कर लिया, डिकम्पोज हो गया और उसने ये कंपाउंड्स हमें दे दिए, NO2 गैस रिलीज़ हुई जिसकी वजह से उसका कलर कलरलेस से येलोइश ब्राउन हो गया. नाउ यू वांट टू रिमूव दिस येलोइश ब्राउन कलर. तो व्हाट इज़ द पैटर्न और व्हाट इज़ द केस व्हेन यू कैन रिमूव दिस येलोइश ब्राउन कलर इन द नाइट्रिक एसिड. सो देयर आर 2 मेथड्स विच यू कैन डू. फर्स्ट मेथड इज़, यहाँ पे हम लिख देते हैं, रिमूवल ऑफ येलो ब्राउन टिंक, ये ई है, इन द एसिड. कौन सा एसिड? नाइट्रिक एसिड. नाउ द पॉइंट अराइजेस. फर्स्ट पॉइंट इज आइदर यू गो फॉर बबलिंग ऑफ एयर और CO2, या तो आप इसी लिक्विड में आपने क्या करा, एयर पास करवा दीजिए या CO2 गैस पास करा दीजिए. ठीक है. दूसरी कंडीशन क्या कर दीजिए आप, डाइल्यूट विथ वाटर. डाइल्यूशन विथ वाटर, इसमें आप पानी डाल दीजिए तो भी क्या है, वो ब्राउन कलर जो येलोइश ब्राउन कलर आ रहा है नाइट्रिक एसिड का, वो चीज़ है वो हट जाएगी. क्योंकि वो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है वो, क्योंकि ये येलो कलर भी मैंने बताया ना, येलोइश ब्राउन कलर किसकी वजह से आया, NO2 की. किसकी वजह से आया ये, NO2 की वजह से है ना, NO2 की गैस की वजह से. तो आप वाटर इसमें डाल दोगे और तो ये जो ब्राउन कलर, क्योंकि NO2 गैस डिज़ोल्व इन वाटर, तो ईजिली वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, वापस आपको विल गेट द नाइट्रिक एसिड कलरलेस. एंड सेकेंड पॉइंट इज़ दैट आइदर यू पास एयर टू इट और CO2 टू इट, देन ऑल्सो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है, जब आप एयर को पास करोगे तो ये NO2 जो है वो अपना नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है. ठीक है. और आप जब वाटर डालोगे तो ये बेसिकली सॉल्युबल है वाटर में. तो दोनों कंडीशन है. ठीक है. तो ये है, अगर आप एयर और CO2 पास करेंगे तो व्हाट हैपन्स, NO2 इट्स ऑक्सीडाइजेस टू नाइट्रिक एसिड, एंड इफ़ यू आर एडिंग वाटर देन NO2 इज़ soluble in water. So I think this is clear to every one of you how this has happened. So we have discussed a general idea of nitric acid, full lab method we have discussed, all the important questions we have discussed which are frequently coming in your board examination. Please go through this topic and learn this topic by your own. Okay, I think this is clear to every one of you. Hopefully you have understand this concept, and please copy down all the important questions which whatever I have discussed in the video.